السلام علیکم. سبسکرائب کریں مجیب الرضا قادری چینل کو اور اسی طرح سے اسلامی ویڈیو دیکھتے رہیں. بولو جھوٹ کیا جنت کا راستہ ہے؟ چغلی کیا جنت کا راستہ ہے؟ غیبت کیا جنت کا راستہ ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دینا کیا جنت کا راستہ ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا قائم کرنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندی فلموں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندے پکچروں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گانے گنگنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اللہ اکبر. شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کر مشرکوں کی طرح ناچنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے بالوں کو ہیرو کی طرح کٹوانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا بیوٹی پارلر میں جانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا سیریل دیکھ کر اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ مجھے بتاؤ، راستہ جہنم کا سب نے چن رکھا ہے اور جنت کی طرف جانے کا خواب دیکھ رہے ہو. جیسے لکھنؤ کا راستہ چننے والا کبھی ممبئی نہیں جا سکتا، چاہے سواری کتنی اچھی ہو، چاہے کتنا عقل مند ہو، چاہے کتنا دانشور ہو، جو راستہ چنے گا منزل وہی ملے گی. ہم نے راستہ جہنم کا چنا ہے. جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے. جنت کی طرف جانے والا راستہ تو وہ ہے. اللہ اکبر. کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، نفس کہتا ہے سو جا، اللہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. میرے بندے نماز نیند سے بہتر ہے، تو نیند کو چھوڑ کر، نرم گدوں کو چھوڑ کر جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم نے جنت کا راستہ چھوڑ نہیں دیا ہے؟ آئیے، مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا، میرے بعد دو تقریریں آپ کو اور سننی ہے. حضرت پیر وجیہ الدین صاحب اور حضرت انس میاں صاحب، ان دونوں حضرات سے آپ نے گفتگو سننی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. بڑی تاخیر ہوئی ہے اور غور سے سننا. ایک ہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اس کی شرح کے ساتھ، اس کی کچھ توضیح کے ساتھ. بہت دھیان سے سننا، بہنیں بھی اور بھائی بھی. حضور کو فکر کیا ہے؟ یعنی آج کی تقریر کا اگر آپ عنوان دے سکتے تو یہ دے دیجیے گا، حضور کو کس بات کی فکر تھی؟ حضور علیہ السلام کو کون سی فکر تھی؟ ہائے ہائے، کسی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میری بچی کو اچھا رشتہ آ جائے. میرے نبی کو فکر ہے، امت کی فکر ہے. میرے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرے بچوں کو اچھی ڈگریاں مل جائے. نبی کو فکر ہے، ایک ہی فکر ہے، میرے امتیوں کو جنت کی ڈگری مل جائے. اللہ اکبر. نبی 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا آمنہ کے لال نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. آئیے اب اس پیار کو محسوس کریں. اللہ اکبر. ایک حدیث سنیے، حدیث کی راویہ کون ہے؟ اللہ اکبر. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت. اللہ اکبر. زوجہ مولا علی سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. یہ حدیث کی راویہ ہیں. فرماتی ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا. اللہ اکبر. بہنوں کی خاص توجہ، آپ کی بھی. اللہ اللہ. فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، دل میں خیال آیا چلو آقا سے ملاقات کرتے ہیں، چلو اللہ کے رسول سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں. مولا علی سے عرض کیا میرے سرتاج چلیے نا، اللہ کے رسول کی یاد آ رہی ہے، بابا جان کی یاد آ رہی ہے، حضور سے چل کے ملاقات کرتے ہیں. اب اس کے بعد سیدہ اور مولا کائنات دونوں مل کر رسول اللہ سے، ہمارے آقا سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں جب ہم حضور کے گھر پہنچے تو ہم نے حضور کو کیسے دیکھا. اب میری طرف دیکھیں، تقریر سنی بھی جاتی ہے اور تقریر دیکھی بھی جاتی ہے. ویسے میں کوئی مقرر نہیں، صرف میری کوشش یہ ہے کہ جو درد میں آپ کے سامنے تقسیم کرنا چاہتا ہوں اس کو محسوس کریں. حضور علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں
को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया है अपने घुटनों पर, और यूं करके अपने घुटने समेटे हैं और सर को घुटने में रखकर अल्लाह के रसूल चुपके चुपके मोटे मोटे आंसुओं से तन्हाई में रो रहे हैं। इस दर्द को महसूस करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। रात की तारीकी और तन्हाई के अंदर पाप और जराइम करने वालों, गुनाह करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, कब के आसमान से पत्थर बरस चुके होते, कब से जमीन में जलजले आकर हम धसा दिए गए होते। पैगंबरों की औलाद को गुनाहों की वजह से सूअर और बंदर बना दिया अल्लाह ने। क्या समझते हो गुनाह को? गुनाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान उठा करके पढ़ो, अंबिया की औलादों ने जराइम किया, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बनाकर 3 दिन में मार डाला। लेकिन अल्लाह अकबर, कौमे लूत का अमल ये कौम करे, कौमे आद का अमल ये कौम करे, कौमे समूद का अमल ये कौम करे। लेकिन क्या बात है, इस कौम पर आसमान से पत्थर नहीं बरसते। अरे पत्थर बरसना तो दूर की बात है, बल्कि ठंडी ठंडी बारिश बरसती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। कभी सोचा इतने गुनाह करके भी हम बर्बाद क्यों नहीं? इतने गुनाह करके भी हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसते? इतने गुनाह करके भी आसमान से आग क्यों नहीं बरसती? इतने गुनाह करके भी हम जमीन में क्यों नहीं धंसते? उसकी बस एक वजह है, अल्लाह तुम्हारे और मेरे पाप नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे और मेरे गुनाह नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ये देखता है मेरा महबूब उम्मत को देखकर परेशान हो जाएगा। महबूब को परेशानी में मैं अल्लाह देखना नहीं चाहता, इसलिए उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। इस उम्मत पर कभी इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता। गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की फिक्र देखें, अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे नबी घुटनों में सर रखकर यही कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता। अगर आप इस मुहावरे को समझते हैं, घुटनों में सर रखकर तन्हाई में चुपके रो रहे हैं, मोटे मोटे आंसू मुस्तफा जान रहमत की आंखों से निकलते हैं और दाढ़ी को तर करते हैं। दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। अपने नबी की मोहब्बत देखो, हुजूर हमसे प्यार कितना करते हैं, हुजूर हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं। और जैसे सैयदा और मौलाए कायनात दोनों आए, अल्लाह अकबर, हुजूर रोने में इतने मसरूफ हैं, उनकी तरफ तवज्जो न की। सैयदा ने सलाम किया, बाबा उठ करके खड़े हो गए। हुजूर अलैहि सलाम की आदत थी, जब भी सैयदा को देखते उठ के खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। सरकार उठ करके खड़े हुए, बाबा की आंखें आंसुओं से तर देखी, दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई देखी, तड़प गई और कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर तन्हाई में क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी, मैं मेराज पर गया था, तो मेराज पर जाने के बाद जो मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया था और जहन्नम को देखा था और जहन्नम का अजाब मैंने अपनी आंखों से देखा, आज मुझे वो अजाब याद आ गया। हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, मैंने उम्मत पर कैसे कैसे अजाब देखा। मुख्तलिफ हदीस का इतने मजमुआ निचोड़ कर अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने उम्मत पर क्या क्या अजाब देखा, उन्हें किन तकलीफों में देखा? तो अब मेरे आका बयान करने लगे, अब उसको जरा गौर से सुनो। अल्लाह अकबर। और नहीं सुधरोगे, नहीं संभलोगे, जिंदगी नहीं बदलोगे तो याद रखना, जहन्नम की आग से तुम्हें और हमें कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो आपने क्या मंजर देखा? तो अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने कुछ औरतों को देखा कि वो जहन्नम की आग के अंदर औंधी लटकी हुई है। बहनों की खास तवज्जो, काश मेरी बहनें ये जो हजारों की तादाद में सुनने के लिए आई हैं, जरा अपने दिल पर रसूलुल्लाह के इन जुमलों को लिख ले, जुमलों को नक्श कर ले। याद रखना, जलसों का मकसद हंसी मजाक नहीं, जलसों का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं, जलसों का मकसद दुनियावी मफाद नहीं,
नहीं। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल को कौन सी चीज रुला रही है, हुजूर को कौन सी चीज तड़पा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज बेकरार कर रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी बेटी, मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतें औंधे मुंह लटकी हुई है और नंगी है, और उनके अल्लाह अकबर सीनों को उनके बालों से बांध करके जहन्नम की खूंटियों में लटकाया गया है। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर में तो लाओ मेरी बहनें भी और आप भी, अगर किसी को एसी में उल्टा लटका दिया जाए तो उसका कलेजा मुंह को आएगा, लेकिन एसी के कमरों में नहीं, अल्लाह अकबर, घरों में नहीं। एक तो जहन्नम की आग, जहन्नम के दहकते हुए शोले, अल्लाह अकबर। और जहन्नम की आग क्या है, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो जान ले। 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है, तब कहीं जाकर जहन्नम की आग भड़की है। वो आग जिसको अल्लाह 3000 साल तक के भड़काए, अरे 5 मिनट में अपना चूल्हा जला लो तो उस चूल्हे की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 5 मिनट जिस चूल्हे पर मेहनत करें, जिस आग को जलाएं, उसकी हरारत का ये आलम है। कुदरत ने जिस आग को 3000 साल तक जलाया होगा, जिस आग को 3000 साल तक भड़काया होगा, उस आग की तमाज़त का आलम क्या है, उस आग की तपिश का आलम क्या है, उस आग की हरारत का आलम क्या है। लोगों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। सादिको मज़दूक, सच्चे रसूल अपनी शहजादी को बता रहे हैं, औरतें नंगी जहन्नम में औंधे मुंह लटकी है, उनके बालों से उनके सीनों को बांध दिया गया है। अल्लाह अकबर। इतना अजाब देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन औरतें हैं जो जहन्नम में औंधी मुंह नंगी लटकी हुई हैं? अल्लाह अकबर। सर नीचे है, पैर ऊपर है, तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। ये आज जहन्नम में औंधे मुंह लटकाई गई है। ये औरतें पर्दा नहीं करती थी, बेपर्दा रहती थी, कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। एक सोच पैदा होती है, इंसान कपड़े पहन के नंगा कैसे रह सकता है? तो उलमा बयान करते हैं, कपड़ा पहनकर नंगे रहने का मतलब ये है, इतने बारीक और पतले पतले लिबास पहनती होगी कि बारीक और पतले कपड़े पहनने की वजह से, कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता होगा। औरत को बारीक कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, औरतें पतला कपड़ा पहन रही है, मतलब अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रही है। औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, पर्दा नहीं कर रही है, यानी वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर रही है। मेरी बहनों सुन लो, अदाकारा के तरीके पर, सीरियल और फिल्म की अदाकारा के तरीके पर अमल करके तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। अगर इज्जत चाहती हो तो सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर अमल करो। अल्लाह अकबर। तुम तो उस रसूल की कनीज हो जिसकी शहजादी की गैरत का आलम यह है कि सैयदा फातिमा ने अपनी हया की इतनी हिफाजत की है कि फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मौला ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अफसोस की बात है, आज की बेटियां दुपट्टों को मफलर बनाकर निकली है। तुम अपने बालों पर घमंड कर रही हो, तुम अपने बालों पर इतरा रही हो, तुम अपनी खूबसूरती पर गुरूर कर रही हो। ये बाल जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, ये नाजुक सी चमड़ी जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। हाय मेरी बहनों, उस दिन तुम्हारा हमारा क्या बनेगा? अपना जिस्म कितना कमजोर है, कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। हम
मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मच्छर काट ले हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, अगर बत्ती का चटका हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो कभी कभी तन्हाई में सोचता हूँ, या अल्लाह अगर तूने हमारे बुरे करतूत की वजह से अजाब देना चाहा, मौला हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर कोई दोस्त हमसे नजर फेर लेता है तो दिन भर बेचैनी में वक्त गुजरता है। मेरी बात को महसूस करो, मेरे जुमलों को महसूस करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बताओ, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। कोई हमें डांट दे, हमारे रोने को दिल करता है। जब हम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं करते, किसी का तिरछी नजर से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब अल्लाह हमसे नजरें फेर कर, निगाह रहमत फेर कर जहन्नम की आग में डालेगा, सोचो हमारा क्या बनेगा, हमारा हाल क्या होगा। याद रखना, ये दीन खेल नहीं है, ये दीन अल्लाह अकबर कहानी किस्सा नहीं है। मेरी बहनों, अपनी कमजोरी पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, 40 मिनट का सीरियल नहीं है। हमें तो अल्लाह के कानून पर अमल करना है। और आजकल की औरतें अगर कपड़ा खरीदने जाती है तो दुकानदार से कहती है, जरा वो कपड़े निकालो जो सीरियल में अदाकारा ने पहना था, जरा वो दुपट्टा निकालो जो अदाकारा ने पहना था। मेरी बहन, ये पतले पतले और बारीक बारीक लिबास तुम पहन रही हो, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन रही हो, तुम्हारा आधा हाथ नजर आता है। इसी तरीके से गला इतना बड़ा पहन रही हो कि अल्लाह अकबर, जो चीज नजर नहीं आना चाहिए, हर महरम नामहरम को वो चीज नजर आ रही है। और फिर दुपट्टों को मफलर बनाकर गले में लटका रही हो और इस लालच से वलीमे में जा रही हो। अल्लाह अकबर, चेहरे खूबसूरत बनाए जाते हैं, ब्यूटी पार्लर तक जाती है बच्चियां। मैं अपनी कौम की माओ और बहनों और बेटियों से पूछता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैरत तुम्हारी कहाँ मर गई? अल्लाह अकबर, जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने से मना किया, उस मजहब की मानने वाली औरत ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? जरा बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, जिस मजहब ने औरत को देवर से पर्दा करने का हुक्म दिया, वो औरत किसी अजनबी मर्द के हाथ में हाथ देकर उससे चूड़ियां कैसे पहन सकती है? जब शौहर के भाई से पर्दा फर्ज है, जब पीर साहब से पर्दा फर्ज है, जब इमाम साहब से पर्दा फर्ज है, और अल्लाह की मखलूक में सबसे नेक, अल्लाह की मखलूक में सबसे परहेजगार, अल्लाह की सबसे मखलूक में सबसे मुत्तकी कौन हस्ती है? मैं अपने अल्फाज में कहूं, नबी सिर्फ मुत्तकी नहीं है, नबी तो सरापा तकवा है। नबी सिर्फ मोमिन नहीं है, नबी सरापा ईमान है। नबी सिर्फ नेक नहीं है, बल्कि नबी सरापा नेकी है, बल्कि जाने नेकी है, वो जाने ईमान है, ईमान का ईमान है। मगर सुन लो, औरत को नबी से भी पर्दा करना फर्ज है। सोचिए, जो मजहब इतना पवित्र हो, जो मजहब इतना पाक हो कि वो नबी के सामने, सैयदुल मासूमीन के सामने औरत को बेपर्दा आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब जिसने, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में औरत हाथ नहीं दे सकती, तो किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में और मेहंदी लगाने वाले के हाथ में औरत हाथ कैसे दे सकती है? वो भी काफिर और मुशरिक के हाथ, वो भी फासिक और फाजिर के हाथ में। याद रखना, जितनी रंगरेलियां मनानी है मना लो, जितनी रंगरेलियां करनी है कर लो, आखिर मौत है मौत। कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और मौत से तुम भाग के कहां जाओगे? ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। बताओ, मरने के बाद कौन बचाने आएगा? हुस्न पर इतराने वालों, हुस्न पर घमंड करने वालों, बालों पर इतराने वालों, जवानी पर घमंड करने वालों, दौलत पर इतराने वालों, ये सब छीन लिया जाएगा। अल्लाह देना जानता है, अल्लाह छीनना भी जानता है। सुन लो,
पतले कपड़े, आदि आस्तीन के कपड़े, गले कटे हुए कपड़े, बारीक लिबास, बेदुपट्टे के घूमना, वलीमों में मर्दों के सामने जाना, बेबाकी करना, मर्दों से नाजायज ताल्लुक कायम करना, अल्लाह अकबर, मर्दों के सामने बेपर्दा जाना, ये सब तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना रहा है। और सुनो, आजकल के मर्द भी ना अपनी बहन को रोकने तैयार है, ना अपनी बीवी को रोकने तैयार है, ना अपने घर की औरतों को रोकने तैयार है। हुजूर अनीसुल मशाइख सरकार सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला दामद जिल्लहुल आली व नूरानी की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर लें नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख आमदे सैयद अनस मियां साहब क़िबला मसलके आला हजरत फैज़ाने दादा मियां हुजूर उर्से मुक़द्दस। बैठे रहें आप लोग, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। बैठ जाएं आप तमामी हजरात। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे पास टाइम 15 मिनट बचे हैं, आप जल्दी से बैठ जाएं तो मैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलगिराम के हमारे शहजादे अनीसुल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद अनस मियां साहब क़िबला वास्ती बिलगिरामी तशरीफ़ लाएं। हज़रत का भी खिताब मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि आपको सुनना है, हम सुनेंगे इंशाअल्लाह दोनों सादात किराम का। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं।